we will be continuing our lecture on asthma. Yesterday we discussed about the history, definitions, pathophysiology, and the clinical features. So, first a quick recap of what we discussed yesterday. Then we'll be moving towards the management part, which is the most important one, and at the end we'll be getting the questions. If you have any questions, then you are free to ask. But let me know if there are any issues with the voice quality. Then I will try to make it more clear. So bronchial asthma is basically a Greek word which means sharp breath. We discuss about the why asthma is important because it is one of the most common chronic diseases with a high morbidity and high mortality. This is the definition that we discussed in a lot of detail. That is, it is a reversible chronic inflammatory airway disease which is characterized by bronchial hyperresponsiveness resulting in bronchoconstriction and leading to symptoms of cough, wheezing, chest tightness, and dyspnea. So it is a very common disease with high morbidity and high mortality. And frequently this is underdiagnosed and undertreated. And it is one of the diseases, कुछ ऐसी diseases है जिसका prevalence जो है वो increase हो रहा है. तो this is one of those diseases जहाँ पे prevalence is increasing. जैसे जैसे urbanization ज़्यादा हो रही है, we are getting more industrialization बढ़ रही है, सारी चीजें. तो अस्थमा का जो prevalence है वो increase हो रहा है. ठीक है. Then we discuss the classification. तो classification जो है वो एक तो according to the type cause थी, it could be extrinsic or intrinsic. So extrinsic is the most common one and which starts mostly in the childhood, और ये ज्यादातर उन individuals में होता है जो कि atopic होते हैं या जिनको allergic disorders भी साथ में होते हैं. ठीक है. Intrinsic is the least common form जो कि middle age में start होता है and it is यहाँ पे basically कोई cause जो है वो identify नहीं होता. Then other classification was according to the severity of when we will be discussing the management part. So this will be discussed in more detail. Then there are certain phenotypes of asthma, जैसे allergic asthma that we ज़्यादातर जो हम लोग discuss कर रहे होते हैं वो basically allergic asthma होता है because we say that this is the most common form. So allergic asthma, occupational asthma which is related to the occupational exposure, intrinsic asthma which is the non-allergic, exercise induced and steroid resistant. ABPA is a specific type. If we get some time in the end, we will discuss it as well. So pathogenesis, the most important inflammatory cells are the eosinophils and the mast cells. Okay, so the most important inflammatory cells are the eosinophils and the mast cells. These are certain pathological features. Since we have discussed most of these things, so I'm just skipping it. Then there were two phases, the early phase and the late phase. And this was the most important slide, which was explaining all that we have discussed so far. The trigger exposure, then how these different cells play their role, and ultimately there is release of mediators like histamine and leukotriene from the mast cells. So eosinophils, IgE antibodies, mast cells, they are the three most important mediators of this asthma pathway. And end result is the bronchoconstriction and increased mucus production. And the symptoms we get are the cough, wheezing, breathlessness, and chest tightness. This is the histopathological overview. These are the cells we have discussed: mast cells, basophils, eosinophils.
and these are the changes that we get in the different cell layers. We can see the smooth muscle layer, there is hypertrophy of the smooth muscle layer, there is changing which are occurring in the intima, so all the cell layers are getting affected. These are the various triggers. So we've discussed that what are the triggers. Triggers are the agents which precipitate the attack or symptoms of asthma. They do not cause asthma, but they precipitate the symptom. कोई इंडिविजुअल है जो प्रीडिस्पोज्ड है, उसमें जब इन एजेंट्स के साथ एक्सपोजर होगा तो सिम्टम जो है वो प्रिसिपिटेट होंगे. The most common are the house dust mites, pests, pollen, then atmospheric pollution, and environmental exposure to various agents, and cigarette smoking is very important. There is a long list of occupational sensitizers that we cannot discuss in lot of detail, but बहुत सारे ऐसे occupational agents हैं जो कि asthma precipitate करते हैं. Drugs we have discussed in detail, the NSAIDs and the beta blocker, then cold air, exercise and emotion. This is a pictorial diagram of all the different factors that we have discussed. Viral respiratory infections are again a very important trigger for asthma. This pathway we have discussed in a lot of detail because this was key to the understanding of the biochemical changes mediators जो हमने discuss किए, leukotrienes and the prostaglandins, and how the NSAIDs can precipitate asthma attack and how steroids are playing the role in asthma. ठीक है, steroids, corticosteroids are the mainstay of therapy. They are the most important drugs in the management of asthma, और वो pathway को यहीं से block करते हैं. ठीक है, so जो भी different mediators हैं वो यहीं से cut down होंगे तो there will be abolition of the symptom. ठीक है, तो जब mediators ही नहीं बनेगा तो symptoms जो है वो कम से कम होंगे. NSAIDs यहाँ से pathway को block करेंगे, pathway जो है वो इस तरफ divert होगा, तो there will be increased production of leukotrienes leading to increased symptoms. History we have discussed that chief symptom cough, wheezing, और उसका जो है ना various उसके कफ का पैटर्न क्या था, that it is most of the time it is nocturnal cough जो कि नाइट टाइम में ज्यादा exaggerate होती है. We'll ask about the precipitating factors, any use of the drugs, any family history, any agents. एजेंट्स भी हमने आइडेंटिफाई करने के पेशेंट के अपने जो है ना फिजिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें जो सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती है, बिकॉज जब तक वो चीजें हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो है वो मैनेजमेंट जो है वो लैग कर रहा होगा. देन डिज्निया, and the important thing is that these episodes are recurrent. ठीक है, एक पेशेंट जो अस्थमा वाला है उसको एक दफा ये चीज नहीं होगी, he will have recurrent episodes. ठीक है, सिम्टम हुए, पेशेंट जो है वो बिल्कुल बीच में नॉर्मल की तरफ भी जा सकता है स्पॉन्टेनियसली और विथ ट्रीटमेंट. इसीलिए डेफिनेशन में ये था कि इट इज अ रिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन. वो खुद भी सही हो सकता है और विथ ट्रीटमेंट भी सही हो सकता है. इन बिटवीन पेशेंट इज कम्प्लीटली सिम्टम फ्री, और ये चीजें बार बार जो होती रहेंगी आफ्टर एक्सपोजर टू डिफरेंट एजेंट्स, जैसे कोल्ड है, एलर्जन है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी क्योंकि पेशेंट को एक्सरसाइज से सिम्टम जो है वो वर्स होंगे. देयर विल बी डिस्टर्ब्ड स्लीप क्योंकि पेशेंट को नॉक्टर्नल सिम्टम हो रहे हैं तो स्लीप विल बी डिस्टर्ब. Occupation is very important to ask, and if there are any pads or carpets at home then it has to be removed. दूसरी कोई एटॉपिक डिजीज अगर पेशेंट को है जैसे एक्जिमा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, तो दैट विल आल्सो हेल्प इन द डायग्नोसिस. ओके, तो पास्ट हिस्ट्री में द इम्पोर्टेंट थिंग इज द ड्रग्स दैट वी हैव डिस्कस इन डिटेल, एंड फैमिली हिस्ट्री इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. स्मोकिंग, ईदर पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग, दोनों ही फॉर्म जो है वो एस्थमा को वर्स. बेसिकली स्मोक एक्सपोजर इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल फॉर द एस्थमा पेशेंट्स.
एक पेशेंट है जो आपके पास आया है, वो एस्थमा पहले से डायग्नोस्ड है, तो उसकी भी हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी है कि एस्थमा किस तरह से डायग्नोस हुआ था, पेशेंट रेगुलर मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो एक तो वो पेशेंट है जो हमारे पास आता है हमें डायग्नोस कर रहा है, दूसरा वो जो पेशेंट पहले से डायग्नोस्ड है उसकी भी डिटेल हिस्ट्री लेनी है। ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो ये होगी, डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास अक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा के साथ आया है या इन बिटवीन है। अगर पेशेंट जो है वो आपके पास आता है व्हेन ही इज इन बिटवीन द अटैक्स, तो एग्जामिनेशन जो है वो इसेंशियली नॉर्मल होगा, क्योंकि उस वक्त पेशेंट को कोई भी जो है वो एक्टिव ना तो सिम्टम होंगे और ना ही कोई फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई चीज मिलेगी। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास अक्यूट अटैक के साथ आता है, तो फिर मेनली जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगी, देयर विल बी साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जो कि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, साइनोसिस जो है वो हो सकता है मोस्ट सिवियर फॉर्म में, देयर विल बी इंक्रीज एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग, टेकिकार्डिक हो सकता है पेशेंट, and patient will be using accessory muscles or recession. wheezing हमने डिस्कस किया कि ये साइन भी हो सकता है और सिम्टम भी हो सकता है। ठीक है। अब इंफेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन सब में डिफरेंट जो है ना वो होती है फीचर्स। तो बेसिकली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि देयर विल बी साइंस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि एयर ट्रैपिंग होगी तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी वो हाइपर इन्फ्लेशन की होगी। तो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट डायमीटर इस तरह से होगा कि जो है वो बैरल शेप चेस्ट आपको मिल सकता है, जिसमें एपी डाय एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो वो ट्रांसवर्स डायमीटर से ज्यादा होगा। परकशन नोट में भी हाइपर रेजोनेंट, ब्रेथ साउंड्स आपको वेजिकुलर भी मिल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रोंका है। और मोस्ट सिवियर फॉर्म जो लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा होता है, वी कैन इवन गेट अ साइलेंट चेस्ट। तो अगर किसी एस्थमा के पेशेंट में आपको साइलेंट चेस्ट मिलता है तो दिस इज अ वेरी डेंजरस साइन, क्योंकि ये आपके लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा को इंडिकेट करता है। ये वही फिजिकल फाइंडिंग्स की जो है वो एक डायग्राम है। ठीक है, तो सिवियर अटैक पे जो है वो पेशेंट के जितने भी सिम्टम है वो बहुत ज्यादा सिवियरिटी वाले होंगे, पेशेंट विल बी इनएबल टू कंप्लीट सेंटेंसेस। पेशेंट बात कर रहा होगा लेकिन एक सिंगल ब्रेथ में जो वो सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं कर सकेगा। पल्स विल बी रेस, टेकिकार्डिक होगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज होगा। लाइफ थ्रेटनिंग अटैक में क्या होगा, अब ये बहुत, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। अगर लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा को आपने नहीं आइडेंटिफाई किया तो उसमें मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो साइलेंट चेस्ट मिल सकता है आपको, ब्रेथ साउंड जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे का रीजन क्या है, बिकॉज इतनी ज्यादा जो है वो एयर ट्रैपिंग हो रही है कि आपको जो है ना वो कोई ब्रेथ साउंड जो है वो मिल ही नहीं रहे। पेशेंट कैन बी साइनोस्ड, इसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, और पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होगा। अब साइट्स जो है दे आर वेरी बिजी, उसमें बहुत सारी चीजें, बट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव डिस्कस what is a severe attack of asthma and what is a life threatening attack. ठीक है, तो एस्थमा को किस तरह से डायग्नोस करेंगे, एक तो क्लिनिकल फीचर्स है एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। और अब अगर हम डायग्नोसिस की तरफ आ जाए, तो किसी भी डिजीज की जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो पहली चीज होती है हिस्ट्री। और एस्थमा के अंदर रिमेंबर हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हर डिजीज में होती है लेकिन एस्थमा को अभी हमने जितना भी डिस्कस किया है उसमें हिस्ट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिटेल्ड हिस्ट्री से आप जो है वो 70-80% डायग्नोसिस तक जो है वो पहुंच सकते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग वो भी सजेस्टिव हो सकती है। लेकिन व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एस्थमा, तो उसके लिए यू नीड लंग फंक्शन टेस्टिंग। ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वी नो एस्थमा इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज जो है, लंग डिजीजेस बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। तो एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है उसको हम डायग्नोस किस तरह से करते हैं, बाय मींस ऑफ लंग फंक्शन टेस्टिंग, या पीएफटी भी उसको कहते हैं या स्पायरोमीट्री भी कहते हैं। वी मेजर डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स। ठीक है,
तो वो जो लंग वॉल्यूम्स को हम मेजर करते हैं उसका पैटर्न जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज में जो है वो डिफरेंट होता है, तो उससे हम एस्थमा को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। इसको आगे जो है ना वो हम ठीक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आई थिंक हम लोग चलते हैं, लेकिन पहले हम उसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन, कुछ नॉन स्पेसिफिक जो इन्वेस्टिगेशन भी होती है, जैसे अगर फुल ब्लड काउंट हम पेशेंट का करवा ले तो वी कैन गेट द इंक्रीज नंबर ऑफ इजनोफिल्स, क्योंकि इजनोफिल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स। चेस्ट एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो मिल सकती है, ठीक है। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो दैट इज, एक तो है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो और दूसरा है स्पायरोमीट्री। अब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है वो क्या है, इट इज अ वेरी सिंपल, आई थिंक ज्यादातर आप लोगों में से जो है ना वो आप लोगों ने पीक फ्लो मीटर देखा भी होगा। एक बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। दिस इज अ वेरी सिंपल डिवाइस, छोटी सी जो है ना एक डिवाइस है जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट मार्किंग्स जो है वो लिखी है, ठीक। पेशेंट ने क्या करना है, पेशेंट हैज टू, पहले पेशेंट एक डीप ब्रेथ जो है वो लेगा, ठीक है। फिर इसके साथ जो है एक माउथ पीस जो है वो अटैच्ड होता है। डीप ब्रेथ पेशेंट ने ली, देन ये माउथ पीस जो है वो फिर माउथ के अंदर रखना है एंड पेशेंट हैज टू ब्लो। पेशेंट को हम ये जो है वो गाइड करेंगे कि उसने ब्लो करना है इन ए सिंगल, जैसे झटके से हम लोग जो एयर जो है वो एक्सेल करते हैं, इन ए सिंगल ब्लो। आई विल ट्राई कि मैं अगर इसकी कोई जो है ना आप लोगों को वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना वो ग्रुप के ऊपर सेंड करूं, ताकि आपको ये बताओ कि हाउ डू वी चेक द पीक फ्लो रेट, किस तरह से हम लोग उसको चेक करते हैं। लेकिन बेसिकली पेशेंट ने एयर इनहेल करनी है, मैक्सिमम इनहेलेशन है और उसके बाद एक्सहेलेशन है, बट इन अ सिंगल ब्लो। अब ये आपका मीटर जहां तक मूव करेगा वो आपकी रीडिंग होती है पीक फ्लो रेट की। तो डिवाइस जो है वो पीक फ्लो मीटर है और जो हम चेक करते हैं दैट इज कॉल्ड पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, या इसको PEFR भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल टूल जो कि आप कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपके क्लिनिक में पेशेंट आया है, आप क्लिनिक में भी कर सकते हैं, पेशेंट जो है वो खुद अपना पीक फ्लो घर पे चेक कर सकता है। लेकिन इसका डायग्नोसिस से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, और डायग्नोस तो हम स्पायरोमीट्री से करेंगे, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज। एक पेशेंट है जो हाइपरटेंसिव है, हम उसका जो है वो किस तरह से इसको मॉनिटर करते रहेंगे, बाय चेकिंग हिज रेगुलर ब्लड प्रेशर। इसी तरह से डायबिटिक पेशेंट है, उसकी ब्लड शुगर देखेंगे, बाकी पैरामीटर देखेंगे। एस्थमा के पेशेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है दैट इज द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी डिवाइस है। एक मेरा रेगुलर पेशेंट है एस्थमा वाला, मेरे पास फॉलो पे आ रहा है, तो मैं उसका हर विजिट पे पीक फ्लो जो है वो जरूर चेक करूंगी, और उससे जो है वो ये जो है वो क्लियर होगा कि पेशेंट की जो है वो डिजीज जो है वो स्टेबल है या वो वर्स तो नहीं हो रही है। तो इसका मेथड जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है कि हम किस तरह से इसको चेक करेंगे। अब एक पेशेंट है, उसका हमें पता है कि उसका पीक फ्लो जो है, अब पीक फ्लो की जो रीडिंग्स है उसकी कोई रेंज नहीं होती है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली उसमें क्या चीजें होती है, पेशेंट की हाइट और जेंडर, ठीक है, हाइट वेट एंड जेंडर। अब हमें ये पता होता है कि पेशेंट का पीक फ्लो जो है वो बेस्ट जो है वो कितना है, फिर उसको हम हर विजिट पे जो है वो कंपेयर करते हैं कि अपने उस वाले बेसलाइन से जो है वो बेहतर हो रहा है या उससे जो है ना वो वर्स हो रहा है। डिवाइस वी हैव ऑलरेडी सीन, और ये एक ग्राफ है, ठीक है। हमारे पास एक नार्मोग्राम होता है या ग्राफ होता है जिसपे यू कैन सी कि ये क्या है, ये पीक फ्लो की रीडिंग्स है और ये पेशेंट की। यानी कि अगर मेरे पास एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल आती है और उसकी फिर हम हाइट देखेंगे कि यहाँ पे किस जगह पे फिट हो रही है, तो फिर हमें पता चल जाएगा क्लियरली कि इस पेशेंट का जो है ना पीक फ्लो कितना होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है या ये डिफरेंट जो है वो बुक्स में भी अवेलेबल है, तो इवन हम लोग अपनी क्लिनिक्स में जो है वो ग्राफ अपने पास रखते हैं, वी कैन इजीली सी कि पेशेंट का जो पीक फ्लो है वो नॉर्मल के अंदर फॉल कर रहा है या वो रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो देन हम लोग डिस्कस करते हैं स्पायरोमीट्री को कि व्हाट इज अ स्पायरोमीट्री। अब स्पायरोमीट्री जो है वो इट इज अ बेसिकली लंग फंक्शन टेस्टिंग, ठीक है। उसमें भी हम पेशेंट्स को मैनूवर्स जो है वो मोरलेस जो है ना वो यही होता है।
इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, दो वॉल्यूम होते हैं, FeV1 होता है और FVC होता है। आई थिंक इट इज, ये यहीं पे हमारी इस वाली जो है ना वो स्लाइड में है, कहीं पे लेक्चर में है। तो एक तो आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो पैटर्न आएगा एस्थमा के अंदर। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न जो है ना उसमें दो चीजें होती हैं, आपके जो FeV1 है और FVC, ये दो चीजें हैं, ये दोनों ही रिड्यूस होती है और दोनों का रेशियो जो है वो रिड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। और एस्थमा के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उसमें हम रिवर्सिबिलिटी, अब ये रिवर्सिबिलिटी टेस्ट जो है ना वो क्या है, रिवर्सिबिलिटी का ये मतलब है कि पेशेंट का हमने लंग फंक्शन टेस्ट इनिशियली करवाया, फिर उसको हम शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देंगे इन द इनहेल्ड फॉर्म। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं वो दैट इज सेल्ब्यूटामॉल। आपने बेसलाइन पेशेंट का लंग फंक्शन किया, देन एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर दिया, अब उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी जो है ना इम्प्रूवमेंट आ रही है। रीजन कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं पे अगर आप लोग एस्थमा पढ़ रहे हो और रिवर्सिबिलिटी की बात आ जाए तो वो क्लियरिटी होनी चाहिए। तो एक सर्टेन जो है वो डिग्री होती है कि इतनी इम्प्रूवमेंट अगर हो तो हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। अगर आपको ये 15% जो है ना वो फिगर नहीं भी याद होता तो डजंट मैटर, लेकिन द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि हमने एक बेसलाइन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया, देन हम पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देखेंगे कि जो पहले था, अब जैसे 400 है तो 400 के बाद वो कितना जो है वो इम्प्रूव हुआ, कितना परसेंट इम्प्रूव हुआ है। अगर वो 15% इम्प्रूवमेंट है तो दैट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ एस्थमा। क्योंकि जो आपकी दूसरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है दैट इज COPD, और COPD के अंदर जो है वो पैटर्न तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव मिलता है बट उसमें इतनी अच्छी रिवर्सिबिलिटी जो है वो नहीं होती। और इसी तरीके से हम एस्थमा और COPD को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक हमने, अब ये जो है वो FeV1 है, ठीक है। तो FeV1 हमने देखा एक बेसलाइन के वो कितना जो है वो है, ये एक पेशेंट का बेसलाइन है। फिर हमने उसको शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर दिया और उसके बाद देखा कि वो कितना जो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो दिस इज द स्टेज स्पायरोमीट्री, इट इज द सिंगल बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें जो है वो बेसिकली हम दो चीजें देख रहे होते हैं, वो होता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं FeV1, and the other one is the FVC या forced vital capacity। और यही दो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को इसकी ज्यादा, क्योंकि आप लोगों के लेवल पे हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये बताओ कि FeV1 और FVC जो है ना वो क्या है, बट बेसिकली ये दो वॉल्यूम्स है जो कि हम चेक करते हैं और इसी के ऊपर जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है या रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम्स है आई एम श्योर ये हम सब लोगों ने फिजियोलॉजी में जो है वो पढ़े थे, जब रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी जब हमने पढ़ी थी तो डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटी, एक से ज्यादा जब लंग वॉल्यूम को हम ऐड करते हैं तो वो कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये FeV1 और FVC, FeV1 इज द फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फर्स्ट सेकंड में जो पेशेंट एयर एक्सेल कर रहा है वो है, और जो टोटल वॉल्यूम वो एक्सेल कर रहा है वो आपकी FVC है या फोर्स वाइटल कैपेसिटी है। नॉर्मल जो उसका वो होता है वो 75 to 80% होता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में और रिस्ट्रिक्टिव में किस तरह से पैटर्न होता है, दैट वो ही बताता है कि ये पेशेंट को जो है वो एस्थमा है या कोई रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। अच्छा, एक्सरसाइज टेस्ट भी हम पेशेंट्स का जो है ना करा सकते हैं कि हमने पेशेंट को जो है वो एक बेसलाइन की स्पायरोमेट्री, उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज करवाया और वो देखा कि वो कितना जो है वो ड्रॉप कर रहा है। लेकिन इसकी ज्यादातर जरूरत जो है वो नहीं होती, ये बहुत स्पेशल कोई सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे इसकी नीड हो सकती है। कुछ और भी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है। दिस आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन दिस एक्सरे। इस तरह के एक्सरे जो है आप लोगों ने अपनी क्लिनिकल रोटेशन में जो है वो जरूर देखे होंगे। तो इसमें व्हाट वी कैन सी कि देयर इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इस तरह से कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम जस्ट एक्सरे को देख के ये नहीं कह सकते। हम कभी कभार ये होता है कि कोई भी लंग जो कि हमें बहुत डार्क नजर आता है तो स्ट्रेट अवे हम कहते हैं कि दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन, लेकिन उसके कुछ साइंटिफिक क्राइटेरिया भी होते हैं।
in hyperinflation what we see कि there is widening of intercostal spaces. अब आप देखो intercostal spaces जो है उसकी width काफी ज्यादा है. There is widening of intercostal spaces. लंग के अंदर कुछ ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग होती है जो कि हाइपरइन्फ्लेशन में रिड्यूस होती है. अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ही डिमिनिश्ड वेस्कुलर मार्किंग है. ये पूरा का पूरा लंग जो है ना आपको ब्लैक नजर आ रहा है. कुछ नजर आ रही है, अगर ये बिल्कुल नहीं नजर आएगा तो वो जो है वो नीमोथोरेक्स होगा. तो देयर इज डिमिनिश्ड लंग मार्किंग, देयर इज वाइडनिंग ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेसेस. और यहाँ पे क्लासिकल ट्यूबुलर हार्ट शेप नहीं है, वरना कभी कभार आपको ट्यूबुलर हार्ट शेप भी मिल सकती है. डायफ्राम का कंटोर इस तरह से होगा कि डायफ्राम का जो नॉर्मली डोम शेप है वो वो खत्म हो जाता है. और डायफ्राम जो है वो क्या होता है, लो फ्लैट डायफ्राम. डायफ्राम एक तो नीचे की लेवल पे चले जाएंगे और डोम शेप जो है वो खत्म हो जाएगी. दीज आर द रेडियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरइन्फ्लेशन. अब एक पेशेंट को हमने जो है वो डायग्नोज तो कर लिया, हाउ वी विल मैनेज. तो उसकी असेसमेंट होगी, फिर अगर एक्यूट अटैक है तो देन एडमिशन और देन ट्रीटमेंट. मैनेजमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस टू थिंग कि वेदर दिस इज क्रोनिक एस्थमा या ये एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा, क्योंकि दोनों की जो मैनेजमेंट है वो इंटायरली डिफरेंट होगी. बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि एस्थमा में यूज होती हैं, बट वी विल गो थ्रू, हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो कि क्लिनिकली जो है वो आप लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीजें ऐसी हैं जब आप प्रैक्टिकली जब आप इन चीजों के अंदर इन होंगे तो फिर ज्यादा जो है वो क्लियर होंगे. टाइम मैंने कितने मीटिंग खत्म करनी 20 मिनट है ना. ओके. सो अब ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ये है क्रोनिक आपकी जो एस्थमा है उसके हिसाब से. ठीक. तो एस्थमा को जो हम क्रोनिक एस्थमा को जो डिवाइड करते हैं वो दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट एंड सिवियर परसिस्टेंट. आप लोगों की जितनी भी टेक्स्ट बुक्स है उन सब में ये क्लासिफिकेशन जो है. अब ये है कि हाउ डू वी से कि दिस इज माइल्ड, इंटरमिटेंट, माइल्ड, परसिस्टेंट, मॉडरेट. दिस इज ये डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर. ठीक है. एस्थमा के अंदर क्या चीज होती है, डे टाइम सिम्टम होते हैं, नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं और पीक फ्लो. तो मेनली ये 3 चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं एक पेशेंट है उसको डे टाइम सिम्टम हो रहे हैं लेस देन 2 पर वीक, यानी पेशेंट को हफ्ते के अंदर 2 दफा जो है ना वो एस्थमा के सिम्टम हो रहे हैं. ठीक है. या 2 दफा से कम तो वो माइल्ड इंटरमिटेंट है. इसी तरह से नाइट टाइम सिम्टम कितने हो रहे हैं, पेशेंट का पीक फ्लो कितना रिड्यूस्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. और जो मैनेजमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट जो है ना वो यहाँ पे किस जगह पे फॉल कर रहा है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि पेशेंट जो है वो कौन से स्टेप में है, तो आपके मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करें. Okay, this is about the acute attack. Acute attack को हम लोग जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट chronic तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना वो chronic है. वैसे भी जो जितनी भी chronic diseases है उसमें मैनेजमेंट पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपने एड्रेस करना होता है जो chronic disease होती है. एस्थमा की जब हम बात करते हैं तो हमें पहली तो चीज ये देखनी है कि पेशेंट कौन से स्टेप में है. स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. व्हाट आर द एम्स ऑफ मैनेजमेंट कि हमने एस्थमा को रिकॉग्नाइज करना है कौन से स्टेप में है, पेशेंट के सिम्टम को एबॉलिश करना है, उसका नॉर्मल लंग फंक्शन को हमने रिस्टोर करना है कि जितना लंग फंक्शन नॉर्मल की तरफ जाए उतना अच्छा है, और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करना है. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव डिस्कस इन डिटेल कि एजुकेशन में पेशेंट को सारी चीजें बताएंगे, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है. पेशेंट को भी एजुकेट करना है एंड फैमिली को भी, स्पेशली अगर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है तो उसमें फैमिली की एजुकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अवॉइडेंस ऑफ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स वी हैव डिस्कस इन डिटेल. ठीक है. मेडिकेशंस का जो है ना वो बिल्कुल इफेक्टिवली पेशेंट को यूज करे. ऐसे नहीं पेशेंट जो है वो स्टार्ट कर दे देन जो है वो खुद से जो है ना मेडिकेशन जो है वो छोड़ दे. फिर पेशेंट को असेस करेंगे कि वो रिस्पॉन्ड जो है वो किस तरह से कर रहा है.
पेशेंट को हम ये भी गाइड करेंगे कि वो पीक फ्लो जो है वो किस तरह से यूज करे। पेशेंट घर पे खुद भी पीक फ्लो जो है ना अपना चेक कर सकता है, ठीक है। और एक पेशेंट को जो है हम सेल्फ मैनेजमेंट प्लान भी देंगे कि अगर ये चीजें हो तो देन यू, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि मेडिकेशंस का पेशेंट खुद ही डोज बढ़ा दे, या कौन से ऐसे फीचर हैं जो कि अगर हो तो फिर पेशेंट को फौरन जो है वो अपने डॉक्टर के पास जो है वो आना चाहिए। So precipitating factors should be avoided. We have discussed all these in detail: beta blocker, aspirin, NSAIDs, allergens, occupational, smoking and other triggers. अब medications जो है, अब अभी right now we are discussing chronic, ठीक है। chronic और acute management में ये है कि बहुत सारी चीजें जो है और मेडिकेशन जो है वो ओवरलैप हो सकती हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो दो है। एक तो वो है जो ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर्स जो है बिकॉज दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है इसमें, तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो ब्रोंकोडायलेटेशन करेंगी। तो ब्रोंकोडायलेटर जितने भी हैं वो आपके ब्रोंकोस्पैज्म को रिलीव करेंगी और सिम्टम जो है वो रिलीव होंगे। तो इसको हम रिलीवर ड्रग्स भी कहते हैं। रिलीवर आर ब्रोंकोडायलेटर्स। और दूसरी ड्रग्स होती हैं कंट्रोलर, या कंट्रोलर ड्रग्स होती है जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगी, ठीक है। ये सिर्फ ब्रोंकोस्पैज्म को रिलीव करेंगी और सिम्टम इंप्रूव होंगे, लेकिन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगी और जो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है उसको कंट्रोल करेगी। तो बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि ये इस तरह से लिखा है कि दीज आर द रिलीवर ड्रग्स या दीज आर द कंट्रोलर। और इवन आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी है जो रिलीवर है, उसके नाम बताएं, या जो है वो कंट्रोलर ड्रग्स है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, controllers are the anti-inflammatory drugs and reliever are the bronchodilators. ड्रग्स जो है वो हम किस तरह से देंगे? ड्रग्स हम डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, लेकिन एस्थमा के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रूट है दैट इज द इनहेल रूट। क्योंकि हमारे ये जो डिजीज है ये एयरवे की डिजीज है, तो कोई भी ड्रग अगर हम लोकली देंगे, फॉर्चुनेटली अब हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट इनहेलर डिवाइसेस आ गई हैं जिसके थ्रू हम ये मेडिकेशन देते हैं। तो इनहेलर के थ्रू जो हम मेडिकेशन देंगे उसके दो एडवांटेजेस होंगे। एक तो ये कि लोकल ड्रग डिलीवरी होगी, उसके साइड इफेक्ट जो है वो कम से कम होंगे, ठीक है। बेनिफिट उसका ज्यादा होगा, साइड इफेक्ट कम से कम होंगे, और उसमें जो है वो हम दोनों ही चीजें दे सकते हैं, क्योंकि वी कैन ब्रोंकोडायलेटर्स भी इनहेल फॉर्म में दे सकते हैं एज वेल एज द कार्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ब्रोंकोडायलेटर्स की अगर हम बात करें तो इनहेल फॉर्म में भी होते हैं, ओरल भी होते हैं, और अच्छा दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो दैट इज अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर भी होते हैं और शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर अगेन दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट और दूसरे होते हैं एंटी कोलिनर्जिक। अब ये सारी लिस्ट जो है ना आप लोगों को याद नहीं करनी है, इसमें से एक आध ड्रग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन सा है, तो दैट इज सेल्बुटामॉल, जो कि वेंटोलिन के नाम से आती है, और जो ओरल फॉर्म में आती है वो आपकी ये है वेम्ब्यूट्रॉल। इसी तरह से ओरल शॉर्ट एक्टिंग सेल्बुट, अब किसी भी ग्रुप से जो है ना कोई एक प्रोटोटाइप ड्रग का अगर आपको नाम याद है तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में सेल्बुटामॉल इज द प्रोटोटाइप। एंटीकोलिनर्जिक्स जो शॉर्ट एक्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज इप्राट्रोपियम, जो कि कमर्शियली एट्रोवेंट या एटम के नाम से आ रही होती है। तो शॉर्ट